Hello and welcome everyone. So now we are going to do some numerical problems on analysis of pre-stress concrete based on stress approach. So let us begin, and we have this example problem number 1, and it says to consider a concrete beam of rectangular section of dimension 150 mm width, as you are seeing here, 150 mm width and 300 mm depth, is being pre-stressed by 4 high tensile wires of diameter 5 mm, and the pre-stress magnitude in the wire is 1200 Newton per mm square. So this is the magnitude of tensioning force in the tendons. The wires are located at an eccentricity of 50 mm. The stresses developed at the soffit of the beam, soffit means the bottommost fiber of the beam, will be examined by considering the nominal concrete. Nominal concrete means, as usual, the similar cross section we have to take as we take in limit state method, and equivalent concrete section also. Equivalent concrete section you must have done in case of design philosophy based on working stress method. So here in the solution part, I have divided it into two halves. The first half, the leftmost, is for the nominal concrete section, in which we need not to modify the concrete section, whereas the rightmost half is for the equivalent concrete section. And here we will be modifying the concrete equivalently. We will be taking equivalent concrete for the steel area. Okay. So in this diagram you are seeing this concrete rectangular concrete beam of dimension 150 into 300 mm, and this is neutral axis. Okay, and from this neutral axis 4 high tensile wires are also shown of diameter 5 mm with an eccentricity 50 mm. Alright, so this is the eccentricity, this distance, vertical distance between neutral axis and the centroidal axis of the bars. So if you calculate the total area of all the 4 bars, it will come out as, there are 4 bars of diameter 5 mm. So if you do the total area, that will be equal to 4 into pi into 5 square by 4. It will come out as 80 mm square. So this is the total area of the tendons, and each tendons are being stressed by this much pre-stress. Pre-stressing force was equal to 1200 Newton per mm square. Pre-stressing force P upon A was equal to 1200 Newton per mm square. So the pre-stressing force, if I say P will be equal to P upon A was equal to 1200 mm square, Newton per mm square, that is megapascal, then the value for P will be 1200 into area. So this is the multiplication here done, and total force being applied on the tendons is 96 kilonewton. Okay, 96 kilonewton. So this tension which is being applied on the tendons will be transferred to the concrete as a pre-stress. So the total area of the concrete section, if we take nominal concrete section, then total area will be equal to 150 mm width into 300 mm. It will come out as 45,000 mm square. Alright. So this is the total area of concrete section, rectangular concrete section. And if you calculate the moment of inertia about the neutral axis, that will be equal to I is equal to BDQ by 12. So if you do that, it will come out as 3375 into 10 to the power 5 millimeter to the power 4. Okay, so we have calculated area also, we have calculated moment of inertia. Now due to this pre-stressing force, and we are assuming here that beam is not being loaded by any external load, and self weight is also here 0 because it's not mentioned as such. Now we have to calculate stress at the soffit. Okay, that is called inframum, sigma inframum or sigma soffit. This is we have to calculate. So we know that this due to this tendon which is
with an eccentricity provided E is equal to 50 mm, we are going to face two stress distribution. One will be uniform, and this is plus P upon A. Okay, this is due to the compressive force. Okay, and here we have calculated everything, P and A also. And this was the first stress distribution, and it is direct stress. Okay, and there will be eccentric moment also, eccentric moment stresses, and this distribution will be like this. अब देखिए कंप्रेशन नीचे होगा, ठीक है, कंप्रेशन नीचे होगा। प्री स्ट्रेस क्या करता है, नीचे कंप्रेशन करता है, एक्सटर्नल लोड नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट करते हैं, पर ये जो टेंडेंस हैं इनके कारण, प्री स्ट्रेसिंग के कारण अब कंप्रेशन नीचे डेवलप होगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन प्लस साइन बिलो एंड माइनस साइन एट द टॉप। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, m अपॉन जेड, सिग्मा इज m अपॉन जेड। m क्या होता है, p इंटू ई, याद है ना, m अपॉन जेड कैन बी रिटन एज p मोमेंट है, फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी, p इंटू ई, एंड z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इन बाई 6, तो 6 ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये इसेंट्रिसिटी को d के टर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 50 mm। सो कैन वी राइट इट एज d बाई 6 बिकॉज d इज 300 mm। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज d बाई 6 ऑल्सो। ओके, 50 mm को हम d बाई 6 लिख देते हैं, जहाँ d है 300 mm, तो कैंसिल होकर 50 mm ही आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, जब 6p, इस केस में इसेंट्रिसिटी है d बाई 6 और नीचे है बी डी स्क्वायर। सो जस्ट कैंसिल द टर्म्स। नाउ इट इज इक्वल टू p अपॉन बी डी, एंड दिस यू कैन राइट एज p अपॉन a। सो दिस m अपॉन जेड कम्स एज p अपॉन a ओनली। ठीक है, अब आप देखेंगे जब इन दोनों स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप जोड़ते हैं, सुपर पोजिशन करते हैं इन दोनों स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को, तो कैसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता है। देखिए यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, तो टॉप में भी p बाई ए माइनस p बाई ए, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगा 0। अभी नीचे क्या होने वाला है, नीचे p बाई ए प्लस p बाई ए, तो 2p बाई ए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा। टॉप पे क्या होगा 0, नीचे हो जाएगा 2p बाई ए। ठीक है, ये समझ में आया, 2p बाई ए, p बाई ए प्लस p बाई ए दोनों ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी हमने ये क्लीन करना है इस बोर्ड को, और फिर अब आपको ये बहुत ही क्लियरली अब आपको समझ में आएगा क्यों हमने 2p बाई ए किया, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस भी था p बाई ए, और सॉफिट पे प्लस साइन के साथ p बाई ए आएगा, तो ये हो जाएगा सॉफिट पे। वी कैन राइट इज सिग्मा इन्फ्रेमम एंड इट इज़ इक्वल टू 2p बाई ए, और p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 96 किलो न्यूटन, तो हम जैसे ही सिग्मा इन्फ्रेमम की जगह हम रखें 2 इंटू 96,000 न्यूटन अपॉन एरिया क्या है, टोटल एरिया क्या है कंक्रीट की 45,000 mm स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा हमारा सॉफिट पे। अब टॉप फाइबर पे क्या होगी स्ट्रेस, सिग्मा सुप्रीमम क्या होगा, सिग्मा सुप्रीमम इसमें 0 होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा वो कैंसिल हो जा रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ नॉमिनल कंक्रीट सेक्शन। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ व्हेन वी हैव equivalent concrete section, how to calculate these stresses. So let us clean the board again, and you must have done modular ratio. Modular ratio you must be knowing in working stress method, and there we have studied modular ratio is the ratio of elasticity. Okay, so that is there, and here in this case we have to assume some modular ratio alpha e. This is our modular ratio, and modular ratio is assumed. Okay, if it is 6,
ना मॉड्यूलर रेशियो का क्या काम होता है इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन में? आप स्टील को हटा देते हो अपने सेक्शन से, यू रिमूव द स्टील बार्स एंड यू हैव टू नाउ कंपेंसेट द एरिया विच इज जस्ट एम्प्टी in place of steel bars by providing some equivalent concrete. Okay, so that is what I have done here. This much equivalent concrete I have added here. And how much area is added here? This much area, 6m-1 times area of the bars. समझ में है? तो 45,000 तो ऑलरेडी था प्लस m-1. अब m-1 क्यों किया है ये तो समझ में आता ही है, क्योंकि ऑलरेडी 45,000 में हमने एरिया ऑफ द बार्स को भी इंक्लूड कर रखा है कि नहीं? 80, ये जो 80 mm² है, आप ध्यान से देखो 150 × 300 में हमने एरिया ऑफ द बार्स ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है एक बार। फिर भी हम एक बार और जब ऐड करेंगे तो इस बार हम 6-1 इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें बस चाहिए इधर का एरिया। ये कितना ऐड किया एक्स्ट्रा, लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा कितना ऐड किया, राइट साइड में कितना ऐड किया, ठीक है, यही तो मैटर करता है। तो ये बहुत ही आसान है और दोनों तरफ कितना आता है m × एरिया ऑफ द बार्स बाई 2। ये बहुत ही आसान है, आपने किया है तो ये आपको क्लियर है। तो टोटल एरिया ऑफ द इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन क्या हो जाएगा? 45,000 प्लस m-1 एरिया ऑफ द स्टील बार्स एंड दिस इज द न्यू एरिया, इफेक्टिव इक्विवेलेंट एरिया। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा कंक्रीट यहाँ पे डाला है, इसके कारण अब न्यूट्रल एक्सिस भी थोड़ा शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट किधर होगा आप ही बताओ? आपने नीचे कंक्रीट बढ़ाया है तो न्यूट्रल एक्सिस भी नीचे आएगी ना। तो जब आप नीचे से, अब आपको अगर आपको पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा जाता है कैलकुलेट करने को, तो आपको कैलकुलेट करना होगा न्यूट्रल एक्सिस की नई पोजीशन एंड दैट विल कम आउट एज 149 mm फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, फ्रॉम द सॉफिट नाउ 149 mm, अर्लियर कितना था 150 mm, सो देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1 mm and due to this if you want to calculate the new moment of inertia I for equivalent concrete section, so it will also be changed and now we are going to use parallel axis theorem. Parallel axis theorem में क्या है? Moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about centroidal axis plus area into वो जो distance between two axis है ना उसका स्क्वायर, ठीक है। तो same thing we have done here. Moment of inertia new is here, Ig is done, Ig we have calculated and plus what is this 150 × 300 × 1 square, ये है एरिया ऑफ कंक्रीट। अब कितना डिफरेंस है एरिया ऑफ कंक्रीट की CG और न्यूट्रल एक्सिस से 1 mm, ठीक है। और एंड व्हाट इज दिस 400 इज m-1 जो हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया है। तो m-1 कितना है? 6-1 इज 5 × 80 दैट इज इक्वल टू 400 mm² एंड 400 mm² इज नाउ दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 49 mm। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी 50 mm थी, अब डिफरेंस हो गया 1 mm का तो 49 mm। सो इफ़ यू कैलकुलेट न्यूट्रल, दिस इज द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया and you can check this is not much different than the earlier. okay, earlier कितना था 3375, अभी नया वाला कितना है 3385। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, not much different, but we are trying to calculate exact values. So now the stresses at soffit will be calculated by the similar method here also, and that will be equal to stresses at the soffit will be equal to here P/A प्लस PE that is the moment upon Z, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अभी हमें क्या करना है P/A क्या है? P is 96,000 किलो न्यूटन, 96,000 न्यूटन अपॉन एरिया अब क्या है नया वाला 45,400 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस अभी फोर्स क्या है P क्या है? P इज 96,000 फोर्स था, इसेंट्रिसिटी अब बदल चुका है 49 mm। अब Z क्या होता है? I E
डिवाइडेड बाई y। अभी y क्या है मेरा 149, पहले 150 था, अब 149 है। IE की नई वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, एंड इफ वी पुट ऑल दिस वैल्यू वी विल कम टू द स्ट्रेस एट सॉफिट इज 4.20 न्यूटन पर mm square. So what is the percentage difference between the two values when we have considered nominal concrete section and equivalent concrete section? We can see there is just difference by 0.07, और इसे मैक्सिमम की वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं या नॉमिनल की वैल्यू से, तो इससे हमने कर दिया, तो ये हो गया परसेंटेज डिफरेंस। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, and this is what we call as analysis based on stress approach. So let us take one more problem, and in this problem we are asked here that a rectangular concrete beam of cross section 30 centimeter, and you can see here is the depth being shown 300 mm and 20 centimeter wide, that is 200 mm width. Okay, that is also shown here, and it is being pre-stressed by means of 15 wires of 5 mm diameter located 6.5 centimeter from the bottom of the beam, ठीक है, and 3 more wires of diameter 5 mm 2.5 centimeter from the top. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक वायर यहाँ पे है, 3 वायर्स, ठीक है, और ये 3 वायर्स की डायमीटर है 5 mm और इनकी दूरी टॉप से कितनी है 25 mm, ठीक है। Similarly there are 15 wires, although not each wires are visible here, but all these 15 wires are here shown like these dots. So all these 15 wires are of 5 mm diameter and they are located at a distance of 65 mm from the bottom, ठीक है। Now if you assume the pre-stress in the steel bars as 840 Newton per mm square, ठीक है, ये प्री स्ट्रेस है। प्री स्ट्रेस मीन्स P अपॉन A आपको दिया हुआ है 840 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। नाउ कैलकुलेट दी स्ट्रेसेस एट द एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ द मिड स्पैन सेक्शन। मिड स्पैन पे निकालना है आपको। मिड स्पैन मीन्स स्पैन लेंथ की बीच में, और फिर कहाँ पे, किस पॉइंट पे, एक्सट्रीम फाइबर्स पे पता करना है, टॉप पे एंड बॉटम पे। When the beam is supporting its own weight, अभी इसमें सेल्फ वेट को भी कंसीडर करने को बोला गया है, ओवर अ स्पैन लेंथ ऑफ 6 मीटर, ठीक है, हमें पता दिया गया है L इज 6 मीटर एंड इट इज शोन हियर, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लाइव लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन पर मीटर also is imposed. So this is external load. Now we have to evaluate the maximum working stress in concrete, and the density of concrete, you must be remembering, it is 24 kilonewton per meter cube. So this is very interesting problem and you will understand the entire concept of pre-stressing here. Just be with me, and in this figure everything is shown here and we have discussed. So now we are going to calculate the effective eccentricity here, because pre-stressing is done at the top and at the bottom also. And now what we are going to do, we are going to concentrate all the bars at one place, okay, considering that all the pre-stressing bars are at one place, and what is the distance of that place from the mid, that will be the eccentricity. तो लेट्स डू दैट। अगर हम एज्यूम करें कि ये 15 बार्स जो नीचे हैं और 3 बार्स नीचे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, इस पॉइंट पे सारे बार्स को मैंने एकत्रित कर दिया है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर ऑफ दिस एंड न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस बीम, दिस विल बी कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बॉटम से करते हैं। तो द सेम थिंग इज रिटन हियर, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फ्रॉम द बेस, ठीक है, अभी करते हैं। तो कितने बार्स हैं हमारे नीचे से, 15 बार्स हैं। 15 बार्स कितनी दूरी पे हैं, 65 mm पे। वैसे ही 3 बार्स कितनी दूरी है नीचे से 300 - 25 mm, दैट इज 275 mm, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हैं 18। अगर ये सिंपल कैलकुलेशन आपने कर लिया तो आपको पता चल गया कि सेंट्रॉइड ऑफ ऑल द एक्यूमुलेटेड टेंडन्स फ्रॉम द बेस इज 100 mm। ये डिस्टेंस पता चल गया। तो अभी इसेंट्रिसिटी पता करना कितना आसान होगा। इसेंट्रिसिटी इज व्हाट? इसेंट्रिसिटी इज डेप्थ ऑफ द बीम कितनी है उसकी हाफ से आपको y को घटाना है। डेप्थ ऑफ द बीम है 300 mm, तो 300 mm का हाफ होगा 150 mm and 150 mm minus 100 will be 50 mm. So eccentricity is being calculated here and now our half of the problem is done. So eccentricity is done. Now pre-stressing force, अभी हमने P/A हमें दिया हुआ था 840 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स P कितना होगा 840 इंटू 18 बार्स है ना, 15 + 3 18 बार्स हैं, और एक बार का एरिया कितना होगा πd²/4। सारे बार्स 5 mm डायमीटर के हैं तो उनका एरिया होगा 19.7 mm स्क्वायर। तो टोटल फोर्स प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁵ न्यूटन। अब टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम कितना होगा? इट्स वेरी इजी, 300 × 200 mm स्क्वायर एंड इट्स 6 × 10⁴ mm स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड BDQ/12, वेरी इजी, यू कैन डू दिस। नाउ लेट अस कैलकुलेट सेक्शन मॉडुलस। अभी देखो, अभी आपका जो बीम है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बीम्स में क्या होता है, सिमेट्रिक बीम्स में ना सेंट्रॉइडल एक्सिस जो होती है उससे दूरी बराबर होती है फाइबर्स की, एक्सट्रीम फाइबर की एंड बॉटम फाइबर की। समझ रहे हैं बात को? अगर यही बीम अगर आपका आई सेक्शन बीम होता ना, जो हम अगले प्रॉब्लम में भी मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, तो उस केस में ये ZT एंड ZB की वैल्यू बदल जाती। क्यों बदलती है? क्योंकि YT बदल जाता, YT इज नॉट इक्वल टू YB। उस केस में ये नहीं होता, ठीक है। इन केस ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ अनसिमेट्रिक सेक्शन, ठीक है, बट आवर सेक्शन इज सिमेट्रिक, सो वी नीड नॉट टू वरी। इन आवर केस what is there? ZT will be equal to ZB, all right, and this is very easy to calculate, BD²/6 या फिर I divided by Y/2, ठीक है। ZT क्या होगा? I divided by Y डेप्थ बाई 2, D/2, तो D/2 है 150 mm, आपने कर लिया, और आपको सेक्शन मॉडुलस टॉप भी मिल गया, बॉटम भी मिल गया, दोनों ही बराबर है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ बीम। अभी बीम जो है सेल्फ वेट है बीम की, और वो भी ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि बीम की तो वेट हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम पर मीटर लेंथ ये UDL निकालें सेल्फ वेट की, अगर हम इसे G मान लें, G है सेल्फ वेट की, तो इसका पर मीटर लेंथ मान लिया जाए मैं 1 मीटर लेंथ ले रहा हूँ, उस मीटर लेंथ में कितना होगा? तो मैंने पहले तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकालो, तो G होगा 0.3 मीटर, ये हमारा डेप्थ हो गया, 0.2 मीटर मेरा विड्थ हो गया, 1 मीटर मेरा वो हो गया लेंथ। इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सेम थिंग इज डन हियर, दिस इज फॉर 1 मीटर, सो सेल्फ वेट ऑफ बीम इज 1.44 किलो न्यूटन पर मीटर, वेरी इजी टू कैलकुलेट। नाउ दिस वाज द सेल्फ वेट ऑफ बीम, ठीक है। अभी इस सेल्फ वेट के कारण जो मोमेंट होगा, सेल्फ वेट मोमेंट उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं mg से, ठीक है। mg की वैल्यू क्या होगी मिड स्पैन पे? GL²/8, ठीक है। G इज गिवन 1.44 किलो न्यूटन पर मीटर, L इज द स्पैन लेंथ 6 मीटर, सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ लाइव लोड मोमेंट क्या होगा? लाइव लोड भी दिया हुआ है आपको 6 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो उसके कारण मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं mq से, एंड mq विल बी QL²/8 एंड दिस ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द डायरेक्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा? P/A, और फिर P/A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है। डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया प्री स्ट्रेसिंग के कारण, जो कि पूरे के पूरे कंक्रीट सेक्शन में कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। वैसे ही बेंडिंग स्ट्रेस होगा ड्यू टू प्री स्ट्रेस। ये किसके कारण हो रहा है बेंडिंग स्ट्रेस? इसेंट्रिसिटी के कारण। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी लिख ली गई है PE/Z। Z तो हर केस में सिमिलर है, तो PE/Z, P की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। इसेंट्रिसिटी 50 mm यहाँ पे यूज़ हो जाएगी,
अब ये भी वैल्यू आ गई है। सेल्फ वेट के कारण जो मोमेंट था mg के कारण, उसके कारण स्ट्रेस कितना होगा mg/z एंड mq/z इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज लाइव लोड स्ट्रेस। अब देखो लास्ट में ना ये सब कैलकुलेशन क्यों किया गया, अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया, आपने ये जो 4 स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सुपर पोजिशन है ना, बस यही है एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट एट द मिड स्पैन। बहुत ही आसान है। पहला आपको समझना है प्री स्ट्रेस के कारण, और दूसरा समझना है एक्सटर्नल लोडिंग के कारण। एक्सटर्नल लोडिंग क्या क्या हो सकती है, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड दोनों हो सकता है। तो ठीक है, मैंने इसे 2 सेक्शन में बांट दिया है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक्सटर्नल लोडिंग डेड लोड भी हो सकती है, लाइव लोड भी हो सकती है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, सेल्फ वेट को कहते हैं हम डेड लोड, और लाइव लोड को तो लाइव लोड ही कहते हैं। अब वो एक्सटर्नल लोड हमेशा ही टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट करते हैं सॉफिट पे, बॉटम पे, ये तो क्लियर है। तो इसीलिए जो स्ट्रेसेस हमने यहाँ कैलकुलेट किए हैं ड्यू टू सेल्फ वेट स्ट्रेस हो या फिर लाइव लोड स्ट्रेस हो, ये दोनों स्ट्रेसेस निगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे आएंगे। माइनस साइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है। 2.16 एंड 9। अब ये सिमिलर ही होगा क्योंकि हमारा ये जो कर्व हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऊपर भी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितना नीचे होगा, बट साइन रिवर्स हो रहा है। सिमिलरली अगर प्री स्ट्रेस की बात करें तो प्री स्ट्रेस में क्या होगा, एक तो होगा P/A हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो टोटल कंप्रेशन में, ठीक है, और फिर PE/Z है। अब देखिए प्री स्ट्रेस के कारण यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, बॉटम पे प्लस साइन दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है। बस इन चारों स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का अलजेब्राइक सम आपको करना है, बहुत ही आसान है, सबका कर देते हैं। तो एक बार 5 + 5 10 -2.16 -9 आ जाएगा आपको 1.16। आप देख सकते हैं प्री स्ट्रेसिंग के कारण जो नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस थे वो प्रैक्टिकली 0 होते जा रहे हैं और बहुत ही कम होता जा रहा है। तो ये बेनिफिट है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होने देता प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में, और कंक्रीट वीक भी होता है टेंशन में, तो ब्रिटल फेलियर का कोई भी चांस ही नहीं, क्रैक डेवलपमेंट का। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर सारे के सारे ये 5 है, ऊपर 5 + 5 है, और फिर प्री स्ट्रेसिंग के कारण यहाँ -5 हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो जाएगा। अब 2.16 + 9 हो गया आपका 11.16, ये प्लस कंप्रेशन, और कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस ये हो गया टॉप पे, ये हो गया बॉटम पे। So I hope you must have understood both of these numericals. So we will meet with more numericals in the next videos. So till that, stay tuned and stay safe. Thank you.